Good evening, student. So, beta, today our day is day 3rd. Date is 28/12/26. Standard 12 Science, subject Chemistry. My today topic name is revision of previous year question paper of last session 2024 to 25. As you know, beta, we are doing the set number 1, in which we are studying about the section A. That means we are studying about the multiple choice question. Right, in my last video beta I explained up to the 6th question. Today I'm going to start from the continue from the 7th one. So just have to write this one. Section A, MCQs question. Just see the statement of the 7th question. Alkyl halides undergoing nucleophilic biomolecular substitution reaction involves. कहने का मतलब alkyl halide कोई बात करें बेटा तो हम RX की बात कर रहे हैं. We are talking about which thing? Alkyl halide. Alkyl halide की बात कर रहे हैं बेटा. Alkyl halide कहता जो हमारा है वो न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रहा है. That means SN2 रिएक्शन शो कर रहा है. S means substitution, N means nucleophile, 2 means biomolecular, right? So इसको शॉर्ट वे में हम SN2 से रिप्रेजेंट करते हैं. गेटिंग so जो हमारा अल्काइल हैलाइड है व्हेन इट विल अंडरगो SN2 रिएक्शन, हमेशा माइंड में रखेंगे बेटा. जस्ट फॉर दिस क्वेश्चन यू जस्ट हैव टू कीप द की पॉइंट इन योर माइंड. दैट इज व्हिच थिंग कि जब हम SN2 की बात करें और वो अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करेगा, इन दैट केस योर न्यूक्लियोफाइल दैट विल अटैक ऑलवेज फ्रॉम द बैक साइड. What I said कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल होता है ना बेटा वो हमेशा बैक साइड से अटैक करता है ड्यूरिंग योर बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट? एंड दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन. और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन. किसको बोलेंगे? whenever the nucleophile that is going to be attacked from the back side, then that undergoes inversion of configuration. So you have a 4 option for this question. First is retention of configuration, then formation of racemic mixture, third one is inversion of configuration, D is formation of carbocation. तो retention भी नहीं होगी बेटा. सेकेंड इसमें फॉर्मेशन ऑफ racemic mixture भी नहीं होगा. racemic mixture में मतलब बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों साइड से अटैक कर रहा है. इन्वर्जन ऑलरेडी मैंने अभी एक्सप्लेन किया आप लोगों को. और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन मींस कार्बोकेटाइन तो इसमें बनता ही नहीं है क्योंकि वो SN1 में बनता है हमारा, क्योंकि दैट अंडरगोस the formation of carbocation, that is unimolecular nucleophilic substitution reaction. But here we are talking about the biomolecular nucleophilic substitution reaction. In that case the nucleophile will be attacked always from the back side and that process is known as क्या बोलते हैं बेटा इसको? inversion of configuration. So which is the correct out of these 4 one? That is C. Just have to tick on the C part of that. Getting? I hope you understood the key point of this one. So हमेशा बेटा जैसे हमारा whenever you are getting such kind of a question in your exam, it means your acid halide that undergo SN2 reaction, then you just have to keep always nucleophile will be attacked from back side, or that process is known as inversion of configuration. Okay, so beta this is the first first question of today's lecture, 7th question. Come on the second one now, 8th question. I'm going to read out the statement of the 8th one. Which is the correct order of acid strength from the following? हमारे पास कुछ कंपाउंड्स ये रखे हैं ऑर्गेनिक नीचे, हमें उसमें से क्या फाइंड आउट करना है बेटा कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ, उसको हमें अरेंज करना है. वी हैव टू अरेंज दैट वन ऑन द बिहाफ ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ. गेटिंग? सो बेटा इसमें 3 कंपाउंड्स ये रखे हैं. आई एम गोइंग टू राइट दीस 3 कंपाउंड ऑन दिस साइड. फर्स्ट दिया है C6H5OH, देन दिया है H2O, then last में दिया है ROH. Firstly, we must have to know about the name of these 3. हमें तीनों के नाम पता होने चाहिए. C6H5OH को क्या बोलते हैं बेटा? This is the name of this one, that is a phenol. क्या बोला जाता है इसको? phenol. H2O को क्या बोलते हैं हम? water. ROH को क्या बोला जाता है? alcohol. गेटिंग? हम फिनोल की बात करें तो फिनोल को हम डिसोसिएट करेंगे तो ये हमें पेनॉक्साइड आयन देगा, C6H5O नेगेटिव. क्या देगा बेटा? C6H5O नेगेटिव. क्योंकि यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की, एसिडिक स्ट्रेंथ मींस व्हेनेवर दैट विल रिलीज H पॉजिटिव आयन, जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करे उसको बोलते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ. सो इट विल गिव्स अ फेनॉक्साइड आयन, और फेनॉक्साइड आयन जो है वो फर्दर रेजोनेंस शो करता है. दैट्स व्हाई दैट इज मोर स्टेबल और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है. क्लियर है? सेकेंड है बेटा यहाँ पे वाटर. वाटर की बात करें तो वहां पे इसको हम डिसोसिएट करेंगे, देन इट विल गिव H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन. ये हमें H पॉजिटिव देगा और OH नेगेटिव देगा. अब H पॉजिटिव दे रहा है, दैट मींस ये एक प्रोटॉन रिलीज कर रहा है इजीली. दैट मींस आफ्टर यूर दिस पेनॉक्साइड आयन, दिस वन इज
This will shows the more acidic strength. Getting? Now come on the last one, ROH. ROH को dissociate करेंगे. It will be dissociate in the form of R positive and OH negative. That means you can see here there is a no release of H positive ion. ये H positive ion release ही नहीं कर रहा क्योंकि हाइड्रोक्साइड ग्रुप के साथ एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है. और एल्काइल ग्रुप किस तरह का ग्रुप होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. Getting? That's why it is the biggest acid among these three. इन तीनों में से ये biggest acid है. Right? Just to arrange these all. सबसे पहले कौन सा आएगा हमारा? फिनोल, देन वाटर, देन अल्कोहल. द रीजन दैट आई टोल्ड यू हियर, just have to see follow that reason. So tick on the this first one. This is the correct option out of these four one. Getting? So बेटा इसका हम पेनॉक्साइड आयन के भी आप पे करेंगे. वो रेजोनेंस शो कर रहा है इसलिए ज्यादा स्टेबल है. वाटर हमारा H पॉजिटिव दे रहा है तो ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ शो कर रहा है. ROH में कोई भी हमारा एसिड नहीं आ रहा. दैट मीन्स वो सबसे बिगेस्ट है. कम ऑन द लास्ट वन नाउ, नाइन्थ क्वेश्चन. व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस वन? द एसिड फॉर्म्ड व्हेन प्रोपाइल मैग्नीशियम bromide is retreated with CO2. अब बेटा अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट आई एम गोइंग टू राइट द इक्वेशन फर्स्टली. हियर आई एम गोइंग टू राइट. उसने बोला है प्रोपाइल. प्रोपाइल का फॉर्मूला होता है बेटा C3H7. मैग्नीशियम मीन्स Mg, ब्रोमाइड मीन्स Br. वो किससे ट्रीट हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ. जब इसको हम इससे रिएक्ट करेंगे, ये CO2 इसके साथ मर्ज करके क्या बनाएगा बेटा? C3H7 COOMgBr. दैट मीन्स मैग्नीशियम कार्बोक्सिलेट ब्रोमाइड या मैग्नीशियम कार्बोक्सिलेट सॉल्ट. राइट? तो हमने इन दोनों को रिएक्ट किया. यू विल गेट द इंटरमीडिएट मैग्नीशियम कार्बोक्सिलेट सॉल्ट. गेटिंग? बट आफ्टर उसने बोला दैट इज गोइंग टू फॉलोड बाय, फर्दर भी वो प्रोसीड कर रहा है एसिड हाइड्रोलिसिस से. एसिड मींस हम H पॉजिटिव से रिएक्ट करेंगे. हाइड्रोलिसिस की बात करें दैट मींस वी आर डूइंग द एडिशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इन दैट. तो बेटा यहाँ पे मैंने वाटर के साथ इसको ऐड किया. सो व्हेनेवर दिस सॉल्ट दैट इज गोइंग टू रिएक्ट विद इन द वाटर एंड just have to in the presence of the acid, then there will be a formation of C3H7COOH. This type of product you will get. What is the name of this type of product? That is known as butanoic acid. 3 कार्बन इसके, एक हमारा कार्बोक्सिलिक का, कितने हो गए? 4. COH है तो क्या हो जाएगा बेटा? ओइक एसिड. So its name will be butanoic acid. So out of these 4 one beta on the behalf of this reaction just have to take the first one. This is the correct option out of these 4. Getting? So in that way just have to attempt your such kind of a question if that will be coming on this exam, right? So today I'm going to finish my this lecture within that one. Still if you have any doubt in my today's lecture then you can ask the doubt in the comment section. तो मिलते हैं बेटा next video में within the next MCQs. Thanks to all.